So we'll read the passage. In India, over the last decade, so there is a definitive word India. You must underline that in India, over the last decade, also labor has been departing agriculture, but only going to the construction and unregistered manufacturing, which are not marked better jobs. So what he is going to say, the today in India in the last decade the labor has departed from the agriculture. So if you are from village, so you know that if you have farming or you have some agriculture, so you know the problem of labor in the agriculture today. Okay, so they are going to other jobs, but what authors criticizing that they are not going to any alternative based jobs, but they are going to again which jobs, manufacturing jobs which are unregistered or the construction jobs. So these jobs are what, nothing but what, which are not a better jobs. Okay, so then again what he is going to say, services where labor tends to be most productive are not generating the additional jobs in country's need. Okay, the services are not which have the most productivity of the labor. Okay, so these are not generating the additional jobs as the country needs. India will need 24 million or so jobs over the next decade. The new sector, e-commerce, can best close only half the job gaps. So India need how many jobs? 24 million jobs in the next decade. But he says that e-commerce industry can only close the half jobs. So आधे jobs और भी आधे लोगों का क्या? Okay, only those sector. So here is very important word. So always underline the word each, every, always, only. So only those sectors is very important. that के बाद का भी पार्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है. हम लोग रूल्स ऑफ रीडिंग लेने वाले हैं. पैसेज में मैं एक स्पेशल 2 लेक्चर लूंगा कि रूल्स ऑफ रीडिंग, हाउ टू रीड द पैसेज. ओके, जिसमें कीवर्ड्स क्या होते हैं, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, तब हम देखेंगे. अभी तो आपका इनिशियल पेज है, तो अभी आपको पता कि मतलब नहीं है. तो जब हम पैसेज स्टार्ट करेंगे कॉम्पिटिशन, तब हम लोग देखने वाले. दैट ड्राइव द डोमेस्टिक डिमांड such as health and education can comfortably fill the other half. So कौन सा सेक्टर है जो इस गैप को फिल कर सकता है? हेल्थ एंड एजुकेशन. ओके, दैट सेक्टर अगर हम उसमें जॉब जनरेट करेंगे तो वही लोगों को, वो सेक्टर ही लोगों को, इतने सारे लोगों को क्या दे सकता है, जॉब दे सकता है. तो हमने उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. तो बेस्ट इंप्लाइड इन द पैसेज. सो इसका मतलब क्या इंप्लाइड है, तो ऑथर क्या कहना चाहता है. तो एक तो ये सेंट्रल थीम होगा, या तो उसका नेक्स्ट स्टेप होगा क्या करना चाहिए. फिर हमने अब जो ऑथर जो बोल रहा है, तो ऑथर का बोलना क्या है कि हमने क्या करना चाहिए, दैट इज एन इंप्लाइड. अगेन एप्लीकेशन. सो दिस आर बिट अ डिफिकल्ट टाइप ऑफ एग्जांपल्स. सो विल सी step by step. And in critical reasoning you have to use the elimination method in each and every question. So elimination is very important in this critical reasoning. A, strong measures need to be taken to reduce the rural to urban migration of the labor. B, the working condition in a construction and the unregistered manufacturing needs to be improved. Service sector has been reducing the problem of unemployment. And option D is what? Increase social sector spending is imperative for the large scale job creation. Okay, bit a difficult example. What is your answer? क्या आंसर है आपका? Strong measures need to be taken to reduce. So how many with option number A? Just raise your hand. How many with option number A? Option number A answer. Please raise your hand. 1. Okay, हाँ. With option number B? Okay. Then C, service sector has been reducing the problem of unemployment. Okay. And D, increased social sector spending is imperative for the large scale job creations. Okay. और कोई भी आंसर देख के नहीं आया ना, प्रीवियस चेक तो नहीं किया आपने, आंसर्स किए होगे तो पता नहीं, फिर आपको आंसर्स पता होंगे, ऐसा तो नहीं है. हाँ. सो अभी देखिए, ए स्ट्रॉन्ग टू रिड्यूस द, पहली बात तो रूरल अर्बन माइग्रेशन का कहा, क्या कुछ बोला है उसने? रूरल अर्बन माइग्रेशन, इज इट एनीवेयर मेंशन रूरल अर्बन माइग्रेशन? हाउ यू डिराइव द आंसर? यस सर, your answer is A. Please clear the doubt.
यही तो आपको क्लियर करना है ना, इसलिए तो क्लास लगा रहे, तो एक एक चीज को डाउट क्लियर करेंगे ना. यस सर, why answer is correct. There is no mention of any migration of the rural and urban, so how it can be answered? So A is wrong. B, the working condition of in the construction and underage manufacturing needs to be improved. He has nowhere mentioned about the working condition. He said that these are not better jobs, which unregistered manufacturing jobs and the construction companies. बराबर है. But implied ऑथर का बोलना क्या है कि हमने किस सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए? हेल्थ एंड एजुकेशन, so that the job can be generated and that sector can fill the, so that is your central theme. तो आंसर आपका जो भी रहेगा वो इसके आसपास रहना चाहिए. इंप्लीकेशन क्या होता है? सेंट्रल थीम का एप्लीकेशन मतलब क्या है? कंक्लूजन का एप्लीकेशन क्या है? तो उसने क्या बोला है कि वहां के वो ठीक है, वो जॉब्स अच्छे नहीं है, फिर इसके लिए उस वहां की कंडीशन बेटर करो. नहीं, वो क्या बोल रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है? वो सेक्टर ही अच्छे नहीं है. सो आपका लेबर जो है, आपका जो जॉब्स है वो किस में मिलने चाहिए? हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में मिलने चाहिए. गॉट इट? दैट्स व्हाई 2 is not, B is not answer. C, service sector has been reducing the problem of unemployment. What he has talked about service sector? Services where the labor tends to be more productive are not generating the additional jobs the country needs. What he has said? Read. Service sector has not generated the jobs that needed by the country. Yes. So how you can say that service sector is reducing the problem of unemployment? Can you say this? So C is also rejected. So D, increased social sector spending is imperative to the large scale job creation. So what he has said, the half of the gap will be filled by what? Of the generation. बराबर ना? So जो हमारा हाफ गैप है ये कौन फिल अप करेगा? हेल्थ एंड एजुकेशन फिल अप करेगा, वही लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएगा, आधे लोगों को. करेक्ट. और आधा ई कॉमर्स देगा. सो हमने किस पे फिर जॉब क्रिएशन पे ध्यान देना चाहिए? हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए, इसका मतलब. सो दैट इज व्हाट. और उस पे जॉब क्रिएशन करना चाहिए, तो क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? और हेल्थ एंड एजुकेशन मतलब कौन से सेक्टर्स है ये? दीज आर दी सोशल सेक्टर्स ना? Yes or no? So these are what? Social sector. So it is imperative for the large scale job creations. तो ये imperative है, जरूरी है large scale job creation के लिए. तो इसलिए आंसर क्या रहेगा आपका? What is the implication of the passage? Answer is option number D. That's why the answer is what? Option D. Got it? D is correct. हाँ. और अभी मेरा humble request है, हम लोग एक एक अगर देखो आपको आंसर पहले ही पता चल गए तो there is no meaning to solve the passages ना. तो अभी प्लीज ये 2 महीने में आप यूपीएससी का कोई भी पैसेज या कुछ सॉल्व मत करो. आप बाकी बाहर का कुछ भी कीजिए, नहीं तो फिर मेरा जो डिस्कशन है और ये एप्लीकेशन है, क्योंकि आपको अगर आंसर पहले से पता है तो आपका पूरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा उसके एप्लीकेशन कैसे लगाना है. तो प्लीज अभी सॉल्व नहीं करना है, जिनको भी बैच लगाना है अपना. हाँ, तो नेक्स्ट विल कम टू द पैसेज नंबर 2. दिस इज ऑल्सो द डिफिकल्ट. सो व्हाट इज क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन है? assumptions. आपको क्या दिया उसने? assumptions. So we'll read. In India, central current focus on the right to privacy is based on the some new realities of the digital age. So in India, right to privacy किस पे dependent है? Realities of the digital age पे dependent है. A right is substantive right only if it works in all situation. But वो बोल रहा है right क्या है? Substantive है अगर वो सभी सिचुएशन में वर्क करता है तो. And for everyone, a right of free expression for an individual about her exploitation, for instance, is meaningless without actual ability of the security that guarantees that private force cannot be used to thwart the right. तो बोलते हैं राइट तो है, लेकिन वो राइट का अथॉरिटी भी होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, उसको सिक्योरिटी भी होना चाहिए कि उसका राइट कोई वायलेट नहीं करेगा. कोई भी प्राइवेट फोर्स उसका राइट वायलेट नहीं करना चाहिए, वो बोल रहा है. तो तभी राइट को मतलब है कि, तो ऑथर क्या बोल रहा है कि राइट के साथ क्या आना चाहिए? उसके राइट को सिक्योरिटी भी मिलना चाहिए. ओके. द रोल ऑफ स्टेट देयरफॉर इज, अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ व्हाट द रोल ऑफ स्टेट? रोल ने स्टेट ने क्या करना चाहिए? तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पैसेज पढ़ते ना तभी ध्यान में आना चाहिए कि कहां पे ऑथर का व्यू आ रहा है. तो यहाँ पे ऑथर का व्यू स्टार्ट हुआ है कि रोल, स्टेट का रोल क्या है? इज नॉट जस्ट टू अब्सटेन फ्रॉम प्रिवेंटिंग द राइट ऑफ फ्री टू एक्सप्रेशन बट ऑल्सो एक्चुअली इंश्योर द प्राइवेट पार्टीज नॉट एबल टू ब्लॉक इट. तो कोई प्राइवेट पार्टीज वगैरह जो है
वो किसी आदमी का राइट ना छीने, राइट टू लाइफ ना छीने, राइट टू फ्री ऑफ एक्सप्रेशन ना छीने, ये भी स्टेट को केवल गारंटी करना ही राइट नहीं, राइट देना ही नहीं है, पर उसको कोई धक्का ना लगा पाए, ये भी इंश्योर स्टेट ने करना चाहिए। गॉट इट? ये पैसेज है। ओके, सो नाउ व्हाट इज एन अजम्पशन? तो ये बोला तो अज्यूम क्या किया होगा? जब उसने ये बोला तो अज्यूम क्या किया होगा? स्टेट शुड हैव सम इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर इट्स एप्रोप्रिएट रोल इन डिजिटल सोसाइटी। ओके, सो स्टेट बोल रहा है कि अब कोई इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बोला नहीं है। ओके, कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए बोला तो नहीं है हम लोग, पर एक है वो बोलता है कि इंश्योर द एप्रोप्रिएट रोल इन डिजिटल सोसाइटी, उसका एक ओके तो थोड़ा बोला नहीं है, उस स्टेट का रोल की बात कर रहा है ये। ओके, स्टेट शुड इंश्योर दैट द प्राइवेट पार्टीज डू नॉट वायलेट द सिटीजंस राइट टू प्राइवेसी। करेक्ट है? दो करेक्ट है, टू तो डेफिनेटली करेक्ट होगा। यस, इस पे किसको डाउट है? टू में बताइए। यही तो सेंट्रल थीम है ना पैसेज का। सेंट्रल थीम बोलेंगे, सेंट्रल थीम इस पे डिपेंडेंट है। सेंट्रल थीम लास्ट पॉइंट से सेंट्रल थीम है, तो ये कंक्लूजन इस पे तो डिपेंडेंट कि उसने इंश्योर करना चाहिए कि किसी प्राइवेट पार्टी का कोई भी राइट वायलेट ना हो। टू करेक्ट है। टू में किसको डाउट है क्या? प्लीज, इज एनीबॉडी डाउट? एवरीबॉडी एग्री विद दिस पॉइंट नंबर टू? नाउ कम टू पॉइंट नंबर थ्री। डिजिटल इकोनॉमी इज नॉट कंपेटेबल विद द आइडिया ऑफ नॉट वायलेटिंग द सिटीजंस प्राइवेसी। अब यहां पे आपको अगर इफ एंड बट लग रहा है, इफ एंड बट लग रहा है, ओके, तो अभी अगर आपको लगता है कि डिजिटल इकोनॉमी नॉट कंपेटेबल विद द आइडिया ऑफ नॉट वायलेटिंग द सिटीजंस, नाउ से डिजिटल इकोनॉमी इज नॉट कंपेटेबल with the idea of not violating with the citizens privacy। इससे कंपेटेबल यहां पे एक डिफिनिटिव वर्ड आया, क्या वर्ड आया? नॉट कंपेटेबल। कंपेटेबल ही नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत हैम्पर हो सकता है, ये हो सकता है, वहां तक ठीक है, बट यहां पे उसने डेफिनेटली क्या बोला है? नॉट कंपेटेबल। आप इस तरह से उसको डेफिनेटली कंपेटेबल ही नहीं है डिजिटल इकोनॉमी, ऐसा बोल सकते हैं क्या? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर वेयर इज अ डेफिनेटली, हियर इज अ डेफिनेटली दैट इट इज नॉट कंपेटेबल। जब भी ऐसे वर्ड आएंगे कि ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, दिस इज द ओनली वे, तो ऐसे स्टेटमेंट तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं? रॉन्ग ही होते हैं। तो ये भी रॉन्ग हुआ। तो आंसर बहुत से लोगों ने दो दिया होगा, मेरे हिसाब से भी इसका आंसर एक्चुअली दो ही आना चाहिए, बट एज पर द ऑफिशियल यूपीएससी आंसर की जो है उसने इसका आंसर 1 दिया है, ए। ओके, द स्टेट शुड हैव सम इंस्टीट्यूट टू इंश्योर इट्स एप्रोप्रिएट रोल इन डिजिटल सोसाइटी। अब स्टेट का रोल डिजिटल सोसाइटी में होने के लिए कोई इंस्टीट्यूट स्टेट के पास होना चाहिए, इस इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ये थोड़ा मुझे डाउटफुल लगता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, देखिए। ओके, तो अब ये हमारे हाथ में तो नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताने के बोल सकता नहीं ए ही होना चाहिए, बट डेफिनेटली अगर आप डी भी निकाल रहे हैं तो भी यू आर ऑन राइट ट्रैक। ओके, अब हो सकता है हमको हर कोई एग्जाम्पल थोड़ी करेक्ट आएगा ना, 30 में से हमको 20 अटेम्प्ट करने, उसमें 15 भी आ गए हमारे करेक्ट, तो भी वी आर इन गुड पोजिशन, करेक्ट। हाँ, तो ऐसा होगा आपके साथ में। तो आई ऑल्सो विद दिस ऑप्शन की 2 होना चाहिए, बट द आंसर इज 1 and 2। हाँ, एक पहला ऑप्शन आंसर कितने लोगों ने लिया? पहला फर्स्ट करेक्ट लिया। हाँ, तो क्यों लिया आपने बताइए? स्टेट शुड हैव सम इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर इट्स एप्रोप्रिएट रोल इन डिजिटल सोसाइटी। नहीं, स्टेट को कोई इंस्टीट्यूट होगी कि वो स्टेट का रोल एप्रोप्रिएट डिजिटल सोसाइटी में ये करेगी। बाकी लोग क्या लग रहा है आपको? हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे ना? यस मैम। देयर शुड बी सम इंस्टीट्यूशन, यहां तक ठीक है, बट स्टेट का रोल डिजिटल सोसाइटी में क्या होना चाहिए? इसके लिए इसलिए इंस्टीट्यूट होना चाहिए, स्टेट का रोल इन द डिजिटल सोसाइटी। What is saying? Please read the statement. State should have some institution to ensure its appropriate role. Whose appropriate role? State's appropriate role, na? In a digital society, right? I have doubt in that. Okay, तो इसलिए आंसर मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए, बट आप लोग मार्क यूपीएससी का जो ऑफिशियल आंसर की का आंसर है वही करेंगे। इसका ऑफिशियल आंसर ए है यूपीएससी का। बाय द यूपीएससी इज ऑलवेज सुप्रीम। ओके, हाँ, तो थोड़ा ठीक है लगे तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे भी हर ईयर के एग्जाम्पल में 2-4 पैसेज ऐसे रहेंगे कि जहां पे हम लोगों को डाउटफुल रहेगा, बट बाय द वे वी हैव टू टेक यूपीएससी। हाँ, पैसेज 3, one of the biggest ironies around the water is that it comes from the river and other wetlands। बिगेस्ट आयरनी क्या है कि पानी कहां से आता है? वाटर का आयरनीज क्या है
कि वो ये रिवर से आता है या तो वेटलैंड से आता है, दैट इज द बिगेस्ट आयरनी, येट इट इज सीन एज अ डाइवर्स फ्रॉम देम। स्टिल लोग जब रिवर को या वेटलैंड को कंसीडर करते हैं तो कुछ अलग कंसीडर करते हैं, और जब घर का वाटर होता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, ऐसा बोल रहे हैं ना वो। ओके हाँ, बल्कि वो पानी भी कहां से आया, उधर से आया। द वाटर इज यूज्ड एज अ रिसोर्सेज, पब्लिक पॉलिसी डज नॉट ऑलवेज ग्रास्प, डज नॉट ऑल दैट इट इज द पार्ट ऑफ नेशनल इकोसिस्टम। तो हमारे घर का वाटर है तो उसको कभी भी नेशनल इकोसिस्टम ऐसा कभी पब्लिक पॉलिसी ग्रास्प नहीं करता है, उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है। ओके, इफर्ट्स एट इंजीनियरिंग द वाटर, engineering the water system are thus efforts at augmenting the water supply rather than strengthening the capacities of the ecological system. Okay, so efforts at engineering the water system are thus efforts at augmenting water supply rather than strengthening the capacities of the ecological system. इसीलिए आज क्या हो गया हमारी कंट्री में कि जब भी हम वाटर सिस्टम का बेटरमेंट की बात करते हैं तो हम केवल वाटर सप्लाई डेवलप अच्छा होना चाहिए इस पे बात करते हैं। ओके, और लेकिन ऑथर बोल रहा है कि हमने किसकी बात करनी चाहिए, जब हम वाटर के बारे में बात करते हैं तो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम को कंसीडर करके वाटर का कंसीडरेशन करना चाहिए, जो हम लोग नहीं कर रहे। ओके, आए थे आप लोगों को। तो व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज। तो ऑथर का मेन मैसेज आपको क्या है, ऑथर क्या मैसेज आपको देना चाहता है। पहला, rivers and wetlands should be protected under the Ramsar Convention। पहली बात, रामसर कन्वेंशन कहां मेंशन है, आप जिसका पेपर दे रहे हैं क्या, is it anywhere mentioned about the Ramsar Convention in the passage? Other thing, he is talking about giving importance to the water, not rivers or wetlands। आर यू गेटिंग इट? रिवर को आप लोग अलग कंसीडर करते हैं, वेटलैंड को आप पानी के हिस्से कंसीडर करते हैं, तो प्रोटेक्टेड ये होगा क्या। इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम शुड बी मॉडर्नाइज एंड फर्दर ऑर्गुमेंटेड। ओके हाँ, देन wetland needs to be reinforced as more than just an open source of water, and D, water supply should be free of cost। free of cost water supply ये होगा क्या, नहीं। now we are remain with the B and C। engineering water system should be modernized and further augmented। he is not talking about only modernization, but he is talking about what, ecological system। so consider this as a part of what, ecological system। what he has said, biggest challenge around the water is that it is come from the rivers and wetlands, yes, yet it is seen diverse from them। while water is used as a resource, public policy does not always grasp as a part of national ecosystem। तो वाटर को क्या करो, एज एन इकोसिस्टम का पार्ट समझो। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है उसने, इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम शुड बी मॉडर्नाइज। तो वो तो वही बोला कि आप लोग केवल किसके ऊपर फोकस करते हो, एफर्ट्स एट इंजीनियरिंग द वाटर सिस्टम इज दस एफर्ट्स ऑफ ऑर्गुमेंटिंग ओनली वाटर सप्लाई। इस पे आप लोग सप्लाई करते हो ना कि वो मॉडर्नाइज होना चाहिए, बट किस पे होना चाहिए फोकस आपका फोकस किस पे होना चाहिए, इकोलॉजिकल सिस्टम के इस पे। सो बेटर आंसर क्या, वेटलैंड्स नीड्स टू बी रीइंफोर्स्ड एज मोर देन जस्ट एन ओपन सोर्स ऑफ द वाटर। केवल ओपन सोर्स ऑफ वाटर नहीं है, पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस को कंसीडर करके आपने उसको क्या करना चाहिए, थिंक करना चाहिए। सो इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा इसमें, सी। दैट्स व्हाट द आंसर इज विल बी व्हाट, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ओके ओके सो तीन डिस्कस किया आज हमने पैसेजेस। ओके द सैंपल बाकी के हम लोग लेंगे बट कल से टुमारो। सो दिस आर जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। सबको ध्यान में तीन पैसेजेस, तीन में से अगर आपका एक भी बराबर आता है, एक पर एक आना चाहिए, तीन में से अगर एक भी आपका बराबर आता है तो आप पोजीशन में हो, पर आपके तीनों गलत है क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पैसेजेस। सो 2020-21 पैसेजेस आर वेरी डिफिकल्ट। तो इसके अंदर एक भी आता है तो ठीक है पोजीशन में हो, लेकिन आपके तीनों गलत आ रहे हैं तो थोड़ा आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है उसमें। ओके हाँ, तो
इस तरह से कोई है क्या तीन में से तीनों करेक्ट आया? एनीबॉडी 3 आउट ऑफ 3? ओके, तो नतमस्तक हो जाऊंगा मैं। 2 आए, ओके। हाँ, सो फ्रॉम टुमारो, वैसे तो आज स्टार्ट करना था लेकिन हमारा ये पूरा मैंने बोला थोड़ा स्टार्ट किया तो थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे दे। फ्रॉम टुमारो वी विल कंप्लीटली स्टार्ट द पार्ट ऑफ व्हाट? रीजनिंग नाउ। ओके, सो रीजनिंग को हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी डायरेक्ट रीजनिंग खत्म होगा, उसके बाद ही हम लोग कॉम्प्रेशन या क्वांट आप जैसे बोलेंगे उस तरह से हम लोग देखेंगे, ठीक है? ओके, सो किसको कुछ बात करना है, कुछ करना है? और प्लीज humble request from my side, please convey your libraries to all your friends, okay, those who are preparing for the UPSC, ठीक है? ओके, हाँ, चलो, so we'll stop here today. Thank you.